evening, my dear students of grade 11. I hope your exam is wonderful and you got a good experience for this. So, here I am, Sarita Saini, your economics teacher. So, with your answer key of August examination, so my dear students, we are going to discuss now all the answer one by one. Fine. So, let's start with your MCQs link first. So here we're going to start with the solution of your link 1, and here we are going to discuss the MCQs. So first one is study of the industry. Study of the industry is a part of microeconomics. That is the correct answer. You have got 4 options and out of that microeconomics is the correct answer. Next is positive. Second question is positive economics analysis is concerned with. So that is concerned with facts and figures. So original facts and figures that I told you, positive economics is concerned with this. Fine. So next is third. Hmm. Third answer is question is expansion of demand is due to. So it is due to fall in price of commodity concerned. So ये हमने डायग्राम्स के साथ भी किया था. So जब आपकी जो प्राइसेस है कमोडिटी के वो डाउन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाती है. सो वी कॉल दैट इज एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज स्ट्रेट लाइन. सो यस इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. स्ट्रेट लाइन तभी बनता है कर्व जो होता है. ठीक है. सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कंसर्न्ड गुड. ठीक है. सो यहाँ पे आंसर आता है इंक्रीजेस. सो नेक्स्ट इज डिमांड. द डिमांड कर्व इज कर्व विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन. सो डिमांड कर्व क्या होता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप दिखाता है हमेशा. नेक्स्ट इज इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स विल इंक्रीज एंड गुड and quantity demanded of good y decreases, then these goods are complementary goods होती है ये वाली. ठीक है. सो एक गुड के प्राइस अगर बढ़ जाता है तो दूसरे की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती है, जो दूसरी कमोडिटी की होती है, वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो आई गेस दैट इज क्लियर. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एयर कंडीशनर डिमांड इज ऑलवेज इलास्टिक, क्योंकि जिसकी हैसियत में होगा वही एयर कंडीशन ले पाएगा. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस. प्रॉब्लम is a problem of selection of production technique. So it is related to technique of production. So we always select on the basis of this. Next is inferior goods. Next is inferior goods are those goods whose income effect is negative and price effect is positive. So inferior goods are those goods जिसके income effect हमेशा negative रहता है. जब इनकम ज़्यादा होगी तो हम inferior goods से superior normal goods पे shift हो जाते हैं. And for price effect it is always positive. So इनका price effect always positive रहता है. Next is if two demand curve intersect with each other, which demand curve will be having more elasticity? So curve with flatter slope, ये हमने किया था. ठीक है. जो कर्व हमारा फ्लैट होगा उसकी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, ये हमने किया था. ठीक है. So next, the rectangular curve for ice cream and summer is likely to shift rightward because क्योंकि favorable taste and preferences होती है. Summer में हम लोग ice cream prefer करते हैं तो favorable taste and preferences है, इसलिए ये आंसर आएगा आपका. So in an economy where 1,000 people demand for uniball pen, it can be termed as. जब 1000 बंदे करेंगे डिमांड तो obviously it can be market demand. So individual डिमांड नहीं होगी. Next is the main elements of demand are quantity, price and time. ये सबको पता है. ठीक है. Next, if close substitutes are available in demand for the good is elastic होगी. जब हमारे पास हमेशा substitutes available होंगे तो हमारी डिमांड जो होगी वो होगी elastic. Next question. So now we have 16th question. So on this question we have got odd one out. So point out the odd one. So out of all the odd one out, goods for which substitute are available. So वो सारे आपके आ जाएंगे. Next आएगा 17th question. Decrease in demand is due to. So it is due to unfavorable change in taste and preferences.
So always demand decreases because of these reasons. Now the next 18th question. So opportunity cost ये हमने किया था. So opportunity cost देखो कौन सी आएगी यहाँ से. So Mr. Siddharth has 3 options to choose from employment options. So first one is 80,000. एक जो जॉब है जो 80,000 दे रही है, दूसरी है 70,000 एंड थर्ड जो है 60,000 दे रही है. So सबसे पहली जॉब जो होगी हम ऑब्वियसली उसको प्रेफर करेंगे एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी जो उसकी नेक्स्ट वाली. So that is 70,000. So opportunity जो हमने लॉस्ट करी है, ठीक है, उसको पाने के लिए. नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो इट इज रॉन्ग. So as compared to true and false statement, so here it is the false statement. So unemployment is a major problem. So aggregate है, सबको मिला के unemployment पता चलती है, तो पूरी कंट्री की आएगी तो it is not micro economics study. ठीक है, so ये false आ जाएगा. Next is dash statement is based upon facts and not suggestive in nature. So it is positive. हमने ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन एक देखा है. ठीक है, so next is dash of demand is caused by fall in price of the commodity. So answer is expansion. So your answer is expansion. ठीक है, every economy has dash resources which can be alternatively used to produce different goods and services. So these resources are scarce. ठीक है, scarce resources. So these are this is the answer. Next is scarcity is the root cause of all economic problems. So is it true or false? That is true. Scarcity की वजह से ही economic problem हमेशा rise करती है. In case of ordinal utility approach, utility is measured in the terms of utils. So we always measure utils. Utility को हम लोग हमेशा utils में measure करते हैं. ठीक है, so when TU is increasing, MU is positive. जब TU increase करता है तो MU हमारा हमेशा positive होता है. Next है indifference map refers to family of indifference curves. So जब हम कितने indifference curve इकट्ठे ले लेते हैं, we call that as indifference map. ठीक है, so which indifference curve will give maximum satisfaction level? So IC4 that will be giving you. तो आपके पास 4 है तो सबसे ऊपर वाला जो होगा वो highest level of satisfaction लेता है. ठीक है, so total utility decreases when marginal utility is negative. जब total utility decrease कर जाती है तो marginal utility हमारी negative हो जाती है. ठीक है, next is dash refers to the want satisfying power of the commodity. So that is utility. ये तो हमने definition भी करी थी इसकी. So and the indifference curve is dash to the point of origin. So it is always convex to the origin. So ये भी हमने उसकी इंडिफरेंस कर्व की हमने करी थी प्रॉपर्टीज में. ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट, ये आंसर आएगा. नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर नाउ 31 to 50. So see, budget line is also known as, budget line को हम लोग प्राइस लाइन ही कहते हैं. ठीक है, so stages of production are result of. So जब भी आपके पास stages of production आते हैं तो law of variable proportion होगा, LVP. ठीक है, next is प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट होता है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है. ठीक है, वही बताता है हमें प्रोडक्शन फंक्शन. एमपी कैन नेवर बी नेगेटिव. इज इट ट्रू और फॉल्स? एमपी नेगेटिव होता है. आपने जो कर्व किया था उसके अंदर आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो हमने किया था, सो उसमें आपने देखा था नेगेटिव हुआ था एमपी. ठीक है, सो इट इज फॉल्स. सो एवरेज प्रोडक्ट इज डैश व्हेन एमपी इज इक्वल टू एमपी is equal to AP. So that is maximum. So average product आपका maximum होता है जब AP and MP equal होते हैं. Laptop and desktop are substitute goods. So true or false? So these are substitute goods. दोनों का use almost same है. So the shape of demand curve is dash when ED is equal to rectangular hyperbola. ठीक है. So in case of long period of demand curve is dash, so it is elastic. Always हम लोग ये मान के चलते हैं लॉन्ग पीरियड में हमारी डिमांड इलास्टिक हो जाती है. डिमांड फॉर हैबिचुअल गुड्स इज इनइलास्टिक. सो दैट इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल द फॉलोइंग कंसेप्ट्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे लिखा है एक किसके अलावा, एक्सेप्ट. सो दैट इज जूट इंडस्ट्री. बाकी सारे उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड दिए हैं, सारे एग्रीगेट्स के साथ रिलेटेड. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कॉर्न. सो दिस इज द डेफिनेशन, तो वही आपने कंप्लीट करनी है. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्कार्स रिसोर्सेज.
सो दैट इज द डेफिनेशन। अगेन आपने तो इसके साथ रिलेटेड स्टेटमेंट आपने कंपाइल करनी है। नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ स्टेशनिटी, सो इट इज मैक्सिमम स्टेशनिटी, पॉइंट ऑफ स्टेशनिटी जो आपका उस टाइम पीरियड में जो आपकी टोटल यूटिलिटी होती है दैट इज मैक्सिमम होती है। डैश measures the slope of indifference curve, so that is marginal rate of substitution. Next is which of the following is an example of complementary goods, so answer is none of these। ठीक है, आपके सारे होंगे उसमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स dash relationship between price and quantity demanded, it is always an inverse relationship। so law of demand में हमने किया था। so which of the following influence price elasticity of demand, ठीक है, कौन करता है? सो सारे ही फैक्टर्स है वहाँ पे जो मेंशन्ड है इन द क्वेश्चन, सो सारे होते हैं। नेक्स्ट, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज मेड बाय अ रिच कंज्यूमर, सो इट्स डिमांड इज जनरली लेस इलास्टिक। सारे रिच कंज्यूमर से अगर करेंगे तो लेस इलास्टिक डिमांड होगी, उसके चेंज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सो दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, सो उसके बाद है व्हेन AP इज मैक्सिमम MP is equal to, when AP is maximum MP is equal to, so it is always equal to AP। ठीक है, so that is all about your MCQs। now let's move to the link 2। so here is the solution for link 2। आपका question था what do you mean by, so that was the causes of economic problem। so उसके साथ आपका था reasons क्या है, what are the reasons behind economic problem, so वो था। उसके बाद था for whom to produce, जो problem है आपने वो explain करनी है। so reasons आपके mention मैंने कर दिए तीनों reasons है, scarcity of the resources, unlimited human wants, alternate uses, and then problem जो है आपकी वो हमने discuss कर ली है, क्योंकि for whom to produce में आपका आता है किसके लिए produce करना है आपने। ठीक है, आप पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करोगे या कमर्शियल के लिए करोगे, तो दिस पॉइंट इज important here, so you can just read about this। fine, now let's move to the next question। so आपकी जो choice थी वो वाला question है हमारे पास, central problems of an economy। so there are 3 problems, हमने किया था what to produce, how to produce and for whom to produce। so ये सारी आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, तो ये आपका आंसर सेम वही है। so I hope so आपने ये आंसर भी सही ही लिखा होगा। so let's now move to the next question। so next is question number 52। so again इसमें था आपका टू कमोडिटीज के केस में आपको यूटिलिटी अप्रोच के साथ जो आपको एक्सप्लेन करना था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी विद द कंडीशंस। तो ये सारी कंडीशंस के साथ हमने फिर से किया है। ठीक है, सो आप लोगों ने ये आई होप सो ये क्वेश्चन तो आपने सारा सही किया है। नाउ सो दैट इज द डायग्राम वी हैव ऑलरेडी मेड, तो आपको रिविजन टाइम में मैंने ये सारी चीजें करवाई थी ऑलरेडी। Now let's move to the last thing। so ये आपका लास्ट में ये चीजें आ जाती है। ठीक है, so that is your answer for two commodities case। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट थिंग। so और वाला जो पार्ट था हमारा क्वेश्चन था इंडिफरेंस मैप एक्सप्लेन करो एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, तो वो हमने करनी थी। so प्रॉपर्टीज जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द रीजन, तो ये हमने किया था ऑलरेडी। ठीक है, MCQ में भी हमने डिस्कस किया। सो इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, तो ये भी हमने फीचर पढ़ी हुई है इसकी। नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व, जो हमने किया था IC4 वाला, जैसे मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन। सो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, देन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका 53rd क्वेश्चन। सो ये आपका लिंक जो है 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ चॉइस वाला क्वेश्चन भी है। सो आपने कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे फैक्टर्स थे हमारे जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो हमारी बुक में गिवन कमोडिटी दी है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सेम है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स जिसमें हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सारा आपका हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन तो सबने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में इंफीरियर एंड नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स के सारे वो एग्जाम्पल से क्या एक्सप्लेन करना। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सो आप कैसे डिमांड करते हो ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। सो अगर आपकी एक्सपेक्ट करते हो फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला, तो उसकी वजह से क्या होगा चेंजेस, डिमांड में उसकी वजह से भी चेंज आता है। नेक्स्ट आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सो इसकी वजह से भी चेंज आता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बेसिस पे ये भी चीजें आती हैं। नेक्स्ट इज now the next last question for this link 2. Now this is the last link for your this is the last question for link 2. So here is the answer that is related to law of demand. So आपका question था explain the inverse relationship between price and quantity demanded. So indirectly मैंने question में आपको law of demand ही पूछा था, तो आपने वही explain करना सारा with assumptions, with statement, and then next thing is with schedule, ठीक है। फिर आपने explain करना है with demand curve, उसकी explanation देनी है। So here is the next point that we have to mention with law of demand, that is limitations, exceptions of law of demand. So first point is inferior goods, Giffen's paradox जो हमने किया था वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू, एंटीक्स का केस भी होता था, मैंने आपको बोला था गुड्स विद स्टेटस सिंबल्स जो हम लोग कहते थे, सो गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, ठीक है। सो वो जो है सारी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करी है। सो नेक्स्ट इज प्राइस एक्सपेक्टेशन, देन फियर ऑफ शॉर्टेज, then change in income, change in fashion, then basic necessities of life. All these points are related to exceptions of law of demand. So with this हमारा जो link है that is almost finished. Now let's move to the next thing. So next now the link 3 solution. So first question was define production function and what is the difference between short run production function and long run production function. So here is the first thing is production functions, the definition of that I just mentioned that one, ठीक है। तो ये चीज है, उसके बाद आपका डिफरेंस है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस, लॉन्ग रन में। सो वी कैन गो थ्रू दिस टेबल, सो ऑलरेडी वी आर डन विद these things. So now the next thing which we have to discuss in the next question, that is now that is the OR part. So here is a numerical portion for you. So in the numerical portion you can see we have got different values. So उन्हीं के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो सिंपल है, हमने ओरिजिनल क्वांटिटी जो है उसको लिया है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने क्वांटिटी ली है उसके बेसिस पे हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। इट्स इजी, आप लोग सॉल्व इजीली कर लोगे, मुझे पता है ये चीज़ तो, ठीक है। सो दैट वाज डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू डू इट इज next question is, this is 54th question, so we are done with that. Now next question is 55th. So law of variable proportion सारा का सारा जैसे हमने law of demand किया था वैसे के वैसे हमने explain किया है। So यहाँ पे आपका law of variable proportion की पहले statement है, उसकी explanation है, then we have got assumptions for the law, तो वो चीज़ें हमने explain करी हैं। Then we have the law of variable proportion explained with table. So that is the point. Next is your curve and the stages mentioned. Then next thing is significance of the three stages. सारी stages का क्या क्या हमारा significance है, तो we have discussed about that. Next is then reasons for the operation of the law. So that is the point. Next after that is reasons for the operation of the law. So that is it. So that is it. Now the OR part. So next question था हमारा AP, TP, MP में सब में relationship बताओ. So first आपको TP, MP वगैरह सबकी जो है explanation with formula and definition वो बतानी है, ठीक है। So बताने के बाद हमने relationship discuss करना है. So with diagram, first I have given you the diagram, तो आपने diagram के basis पे सारा explain करना है. So see the next thing. So that is the relationship we already know, we are done with this. So आप लोग पढ़ लेना, तो ये आपके सारे आंसर्स मैंने आपके लिए रेडी कर दिए। नेक्स्ट थिंग जो है हमारी दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। जो पहला था हमारा दैट वाज
रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। सो ये सारा ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। सो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the last question of your link 3. So इसमें भी आपका numerical portion है, so numerical आपने solve करना है, ठीक है। So ये आपका solve किया हुआ है, so almost आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। So next जो आपका है that is last question for the paper. So that is any 5 factors affecting the elasticity of demand. So we have got these 5 factors. इसके अलावा भी अगर आप कोई लिखोगे तो दैट विल नॉट बी रॉन्ग। अगर मुझे करेक्ट लगता है या सर को करेक्ट लगता है तो इट विल बी ऑलवेज द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। तो हम लोग उसके मार्क्स आपको देंगे। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी, सेकेंड इज टाइम पीरियड, देन इज प्राइस लेवल, देन डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, देन लास्ट वन इज हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। सो ये सारे पॉइंट्स जो आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमेशा अफेक्ट करते हैं। Now, in the last, I would say thank you so much, and I hope your queries all are solved till this. So, in the end, I would say thank you so much. God bless you all, and please do well in the next exam and just learn from your mistakes from this exam. Fine. So, thank you. Keep on learning with Cambridge International School, the SUA. So, that is all for today.